welcome all of you today at the Dehradun International Film Festival 2015. We started our festival on the 25th of this month with The Japanese Wife as our opening film, directed by Aparna Sen, starring Maushmi Chatterjee, Rahul Bose and Raima Sen. Also with some serious cinema screened in our 3-day journey, showcasing films which were screened in India for the first time, like Shackle, One Missed Call and Crossed. Being Woman, a great film based upon women of today and men of yesterday, receiving pleasing response from the youth of Dehradun. We showcase some international classics as well as from actually Taiwan at the Tulas Institute and Silver City with Mr. Ambassador of actually Taiwan himself, representing the movie Gate Number 7 and Everlasting Moments, which had a unique storyline. The Gate Number 7 showcases the passion that is required to achieve your goals and make your dreams come true. We have witnessed some amazing movies which were not only shot and directed in Uttarakhand, but also the entire crew and the cast belongs to Uttarakhand. These films gave a strong social message. The Silent Heroes by Mahesh Bhatt is one of the great examples which showcase the immense local talent. Anybody here who had the opportunity to watch the film? Want to say a few things, why, or do I move on? Okay. We screened a couple of the masterpieces. The Bandit Queen, starring Saurabh Shukla, Seema Biswas, who actually won the national award as well for the movie. Junoon, starring Nasiruddin Shah, Shabana Azmi and Sushma Sethi, along with other great talented co-actors, directed by the legendary director Shyam Benegal. Okay. It is now actually time to honor someone with a lifetime achievement title, who is a legend of our cinema industry. इस सिनेमा के जगत के इतिहास में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है. Her on-screen pairing is highly appreciated, especially with the superstars like Rajesh Khanna, Shashi Kapoor, Jitendra and Sanjeev Kumar. She made her debut in the Bengali hit Balika Badu. Her debut as a heroine in the Hindi film was Anurag in 1972. मैं देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओर से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हरीश रावत जी को कि वो हमारे साथ आएं और उनको सम्मानित करें. द लेजेंड ऑफ बॉलीवुड, none other than Maushmi Chatterjee with the Lifetime Achievement Award. A standing ovation for Madam Maushmi Chatterjee. Definitely, big one. Big round of applause.
you are most welcome. You are already in Dehradun. आदरणीय मौसमी चैटर्जी साहिबा, हम हमारे हमारे जिस समय हम लोग फिल्म देखते थे तो उस समय की हीरोइन है, तो हमारे meeting you very older people like me. You are equally popular among the youngsters. Inspiration for Well you. managed, sir. Well managed. आदरणीय सुषमा सेठ जी, very dominating, very influential personality. सौरभ शुक्ला जी, इवानी शिवपुरी जी, about her I have heard and I have read lot, and I hope that she will be doing something good in the future also. And I will be happy that if our government can associate itself with our efforts. श्रीमती सीमा विश्वास जी, नासिर अब्दुल्ला साहब, राजेश शर्मा जी, मनोज कुमार जी, सुनील जैन जी, रवि भाटिया जी, सुभाष भट्ट जी, अनिल जी, महेश भट्ट जी, राकेश नैनवाल जी, तरुण चोपड़ा जी, कुमारी तनीमा चेतन जी और सभी ऑर्गेनाइजर्स और सबसे जो हमारे दून के लोग हैं, देहरादून के, जो इस तरीके की इवेंट्स को, नए आइडियाज़ को, नए एफर्ट्स को, चाहे वो एफर्ट्स छोटे स्केल पर हों या बड़े स्केल पर हों, लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है और मैं आपके इस सपोर्ट के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। The last, it is your support is matters. यदि आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर हमारे ये लोग जो है, जिन्होंने ये बहुत विनम्र कोशिश की है, छोटी सी मगर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नॉर्मली ऐसी चीज़ें जो है गवर्नमेंटल सपोर्ट के साथ या किसी और बड़े ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट के साथ होती हैं, और यहाँ के हमारे इंट्यूसिव जो ऑर्गेनाइजर हैं, उन लोगों ने इसको अपने आप अपने तरीके से मैनेज किया। बल्कि मैं मीडिया को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत लिखा इसके विषय में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इसके लिए बहुत कुछ लिखेंगे। एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में हमारे पास दोनों चीज़ों की, एक तो आर्टिस्टिक टैलेंट की, कल्चरल टैलेंट की, और दूसरी तरफ जो है नेचर की ब्यूटी, जो उसकी कोई कमी नहीं, मगर हमको दोनों का समन्वय करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है। एक्सेप्शन अमंग बंगालीज, इफ यू आस्क, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल विल मीट देम हु आर एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड and Uttarakhand hills. Of course, Mausami ji has seen only Mussoorie and this Dehradun around, but the people who have seen Rani Khet and beyond Rani Khet, Chowpudi, Pithoragarh, then Uttarkasi, they have lot to tell about the natural scenic beauty of Uttarakhand. तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक बड़े एक्सपोजर के रूप में आएगा, और हमने इसी उम्मीद के साथ जो है फिल्म पॉलिसी सब अपने लोगों के साथ जो कोशिश कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ करके अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है मगर वो अपने टैलेंट को संवारने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं, हमने उन सब से कंसल्ट करके फिल्म पॉलिसी बनाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे जो हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको सहारा मिलेगा, वो आगे आएंगे, और उसके साथ साथ दूसरे लोग भी जो स्टेब्लिश नेम्स हैं वो भी आगे आएंगे। तो उन्होंने कहा हम ऋषिकेश आते हैं और गंगा के किनारे आरती में आते हैं, इतना अच्छा लगता है। जिन में कहने वालों में रजनीकांत जी थी, उन्होंने कहा मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा मन ये कहता है सब छोड़ छाड़ करके मैं साधु बन करके यहीं पर गंगा के किनारे रम जाऊंगा।
तो जब उन्होंने कहा मैं आना चाहूँगा, मैंने कहा भाई आइए, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करें, ताकि उत्तराखंड की जो सीनिक ब्यूटी है उसकी हम नेशन वाइड ब्रांडिंग कर सकें। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं उत्तराखंड के साथ। So India, it's time to take this evening forward. I would like to call upon our patron Sushma Seth ji to please come down with us and say a few words and give the blessings to us. यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। इतना अच्छा ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है और ये पहला देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिससे कि सारे जो यहाँ के प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स हैं और छोटे छोटे एस्पिरेंट्स हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, वो अपनी अपनी फिल्म्स बना के या अपनी स्क्रिप्ट लिखकर और इसकी टेक्निक्स के बारे में समझ कर सीख कर कुछ दिखाना चाहें तो उन्हें ये मौका मिलेगा। और आप सबको, दर्शकों को भी वो देखने को मिलेगी। जैसे कि आज हमने देखी थी एक फिल्म जो कि आप में से ही हैं जिन्होंने बनाई थी और इतनी अच्छी उसकी मैसेज थी टेलीफोन के बारे में कि आजकल बच्चों के हाथ में और बड़ों के हाथ में सारे वक्त जो मोबाइल फ़ोन रहता है और वो सारे समय उसको कान पे लगाए रहते हैं, चाहे ड्राइविंग भी कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, और उसमें कितने सारे कॉल्स आते रहते हैं तो वो ईयरफोन्स लगा के नहीं सुनते हैं, वो हाथ में रखते हैं। उससे सारी कंसंट्रेशन जो ड्राइविंग की है वो बिल्कुल बिगड़ जाती है और उसमें उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उनका मौका है, उनकी एनिवर्सरी थी, तो इतनी प्यारी तरह उन्होंने दर्शाया था ये। और आपके यहीं के हैं देहरादून वासी जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी, तो इस तरह का मौका और सबको भी मिलेगा। तो आशा करते हैं कि जितने भी प्रतिभाशाली फिल्म मेकर्स हैं, यंग एस्पिरेंट्स हैं जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, वो आगे आएंगे। और एक पॉलिसी भी यहाँ पे शुरू की है जिससे कि उन्हें सहयोग भी मिलेगा अपनी फिल्म बनाने का। Such wonderful and beautiful stars from India, which I've never had this opportunity to meet them in person. I treasure that that value very, very much. In closing, once again, I'm very, very honored to have this opportunity to be invited here. I wish you have a wonderful evening. Thank you very much. Thank you so much, sir. All right, ladies and gentlemen, I would now like to call upon our patron, Mrs. Sushma Seth ji again to please come forward and swagat kijiye. Yes, the legendary star Mosmi ji ka. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? ये बहुत अच्छा शुरुआत है क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनती तो है मगर देखने का मौका नहीं मिलता है, खरीदने वाले नहीं होते हैं, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन में मुश्किल होता है या किसी भी वजह से नहीं देख पाते। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फिल्म मेकर्स के लिए भी, एट द सेम टाइम व्यूअर्स के लिए भी, जिन लोगों को फिल्म देखने का मौका नहीं मिलता इस तरह की फिल्में, वो भी। और साथ साथ और अच्छा है कि एक मेला जैसा लगता है जो अच्छे सोच, अच्छे विचार एक्सचेंज कर सकते हैं हम आपस में। तो एक माहौल की बहुत आगे जाएं और देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया के नंबर 1, इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फिल्म फेस्टिवल बने, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। I think this film festival is a great initiative, and viewers, filmmakers, and all the persons who are here बहुत अच्छे से रिसीव की गई सारी फिल्में। एंड हमारी जो ऑडियंस है यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेंस है उनका, काफ़ी अच्छी जगह वो क्रिटिसाइज करते हैं फिल्म्स को, एंड दे हैव वॉच्ड आवर फिल्म्स विद ग्रेट पेशेंस।
उन्होंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए अपने. सो इट्स अ ग्रेट वे टू गो एंड आई एम honored and I'm thankful to the organizers and everyone who has been making this festival such a big thing. Thank you. Hi, good evening. कल तूला में हमारी फिल्म दिखाई गई थी साकल. साकल इन इंग्लिश शैकल. वहाँ पे तो स्टूडेंट्स ने देखा, लेकिन हमने आप सबको बहुत मिस किया क्योंकि आप लोग नहीं देख पाए. मैं बहुत ज़्यादा तो बताऊंगी नहीं क्योंकि हमारी फिल्म इस साल के एंड में रिलीज़ होने वाली है ऑल इंडिया. बस इतना बताऊंगी कि शर्मा जी को भी थैंक यू और सबको, सीमा जी, सौरभ जी, सुषमा जी, ओम सर, मैम, मौसमी जी, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए. हम जो फिल्म बना रहे हैं आजकल, जो इंडियन कल्चर है, हमारी फिल्म उस पर है जो विदेश में, हाँ विदेश में इट्स रियली इट्स गेटिंग अवार्ड्स एंड ऑल, बट वी वांट इट इन इंडिया बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम इन इंडिया. तो दिसंबर में जब ये फिल्म रिलीज होगी, आप सब प्लीज आइए. जैसे सौरभ जी ने कहा कि घर से बाहर आइए और थिएटर में आके देखिए प्लीज. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्योंकि पहली बार हमने ये फिल्म इंडिया में. थैंक यू सो मच. say this कि वो मूवी, जी हाँ, उनका क्रू एंड कास्ट यहीं के हैं फ्रॉम उत्तराखंड itself. एंड अगर आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी है तो प्लीज देखिए वो मूवी. अ वंडरफुल फिल्म, और वो जल्दी फेस्टिवल्स में ही दिखाई जाती है. तो अगला फेस्टिवल जब भी होगा तो आप जरूर देखिएगा वो मूवी. अ वंडरफुल रिस्पॉन्स हमें मिला था उसके लिए आज. जी हाँ, सीट्स के अलावा जगह नहीं थी यहाँ पे बैठने के लिए. एंड पीपल वांटेड टू वॉच दैट मूवी. We received a great response for that movie. So yes, ladies and gentlemen, we have one of the great talented directors with us. I would like to call Mr. Rohit to please come up and talk about his movie which was screened today, Chehre. I'm very delighted to be here. As Saurabh Shuklaji mentioned, that it would be nice if people walked in and watched the film also. I did present my film today, which is a rather interesting film, which has been loved by Govind Hanli Sahab and a lot of other people, and my favourites of Mr. Salman Khurshid, and it's been releasing in Delhi in 2 weeks from now. I wish I could have shared those moments with you also. It's an interesting film, and I was extremely excited to be here because Dehradun is a place where my forefathers began and had a wonderful area that we lived in here. But I've just visited recently when the father Samadhi is there. But I can also say the people are wonderful. I wish the culture of the city is also made into a brighter future of creativity, and people respect us for what we do and what we can achieve and what we can give to others and share with them. Please do respect the creative arts of people and give them the opportunity to be there. Just making a film is not enough. It is how you project it and that you accept it and respect it. Thank you very much. Thank you. सर सुषमा जी ने बात करी थी a movie called One Missed Call, जब बंदा फोन पे बात करते हुए जाता है, और बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज उन्होंने पास किया है. So do we have Mr. Anil Vora here? गुड इवनिंग एवरीबडी. मैंने और मेरी टीम ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है अबाउट 22 मिनट्स विच इज़ कॉल्ड द वन मिस्ड कॉल. इट वाज स्क्रीन्ड टुडे मॉर्निंग, और आज संडे सुबह हमने सोचा कि शायद संडे को लोग लेट उठते हैं, नहीं आ पाएंगे, बट वी वर रियली सरप्राइज्ड द हाउस वाज फुल एंड पीपल वर स्टैंडिंग एंड वाचिंग द फिल्म. सुषमा जी आई, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने तारीफ करी हमारी फिल्म की. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द थॉट बिहाइंड द फिल्म. I personally feel mobile phone is a wonderful gadget which is a big convenience to us. But हर चीज का एक यूज होता है, एक ओवर यूज होता है और एक मिस यूज होता है. आई थिंक हम आज की डेट में उस स्टेज में इस लेवल ऑफ एडिक्शन पे पहुंच चुके हैं कि कहीं ना कहीं मोबाइल फोन का ओवर यूज हो रहा है. इस थॉट को लेके हमने ये छोटी सी फिल्म बनाई थी. जो लोग नहीं देख पाए, नहीं आ पाए, we'll soon put it on YouTube and you can watch it there. Thank you once again. So well, it's time to take the evening forward. In a while, we'll have the Chief Minister, Mr. Harish Rawat, with us, joining us soon, followed by the proceedings. So I'd like to call upon
Miss Silky Jain to please come up and share her experience of Dehradun International Film Festival, which happened where we filmed the movies yesterday. अगर मैं तो कहूँ हिंदी में मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी ऑडियंस है, शायद वो हिंदी में सुनना पसंद करेंगे। पहले तो सारे ही आज कल 3 दिन के सेलेब्स जो हमारे देहरादून में आए थे, हमारा देहरादून बहुत ही बड़ा हो गया इनके आने से। 25 को देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करी गई थी सिल्वर सिटी में। 26 को तुलाज इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज में इसका सेकेंड डे था। सेकेंड डे सिल्वर सिटी में भी हुआ था घर, लेकिन मैं तुलाज के बारे में बात करना चाहूंगी। तो हमने यहाँ पे 4 मूवीज दिखाई थी। शुरुआत हमने टीकू मूवी से करी थी और डेफिनेटली जो दीपिका पादुकोण की मासी बनी थी वो हमारे कैंपस में आई थी। सेकंड सौरभ शुक्ला जी भी कैंपस में आए थे, नाम बैंडेड क्वीन, एंड यस सुषमा सेठ ऑफ कोर्स। सो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। नासिर जी भी हमारे कैंपस में पधारे थे और उन्होंने काफी बच्चों को एंटरटेन किया, उनकी बच्चों की एक्टिंग उतारी, एंड ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर। It was a good show overall, and yes, we actually enjoyed. The audience was Tulaz Institute की audience and also from different colleges what we had. I would like to congratulate Dehradun International Film Festival कि उन्होंने ऐसा एक रास्ता चुना कि yes, public अपने घरों से निकलकर थिएटर में आ पाए और मूवीज देखे। जैसा कि सौरभ शुक्ला जी ने भी कहा कि हम लोग नहीं आते हैं अपने घरों से बाहर, तो प्लीज आइए और देखिए हमारे देहरादून में बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस खुल गए हैं, तो अब ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि ठीक है हम लोग को एंजॉयमेंट मैटर नहीं ले पाएंगे। एंड यस, आज हमारी क्लोजिंग सेरेमनी एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसने पूरे क्रू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा एंड अच्छे से पब्लिसिटी करी। थैंक यू सो मच। Hi, Anawat है सबको। So we're just waiting for the CM, so I thought I would do something somewhere. तो मेरी असल में बांसुरी लाया था, वो मैं गाड़ी में छोड़ा है, इट्स इन द पार्किंग। तो आज मुझे और भी पैसे मिल जाते, you know, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही करना पड़ेगा आगे जाकर अपने पैसों को कमाने के लिए। Anyway, I want to share an experience. मेरी फर्स्ट फिल्म एक्चुअली शाहरुख खान की जो फर्स्ट फिल्म थी वो मेरी भी थी। अब देखिए शाहरुख खान कहाँ और मैं कहाँ, मतलब आपके सामने ही वो अच्छा है मुझे। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि देहरादून में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, स्पेशली उत्तराखंडी होने के नाते, क्योंकि देहरादून मेरी जन्मभूमि है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली ऑल दीज ग्रेट एक्टर्स हु आर हियर, वेटरन्स लाइक सुषमा जी, मौसमी जी एंड सौरभ जी and Seema Vishwas and the Excellency, the Ambassador of Taiwan. I'm very happy and I'm feeling very proud that all of you are here to grace the occasion. And for me it's a special moment because I've always dreamt that sometime our industry, we make some films that they reach international standards. And I really congratulate the organizers for organizing such a beautiful festival. Thank you so much. We have Mahesh Bhatt ji, Mahesh Bhatt साहब, can we have you here please? पहले मेरे सामने जो ये वरिष्ठ है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिवादन करता हूँ कि मुझे आप जैसे महान और आदरणीय सम्मानित लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, और साथ में जितने पीछे हैं सबका भी मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूँ कि मुझे बोलने का अवसर मिला। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे? यू नो हिंदी? आई एम स्पीकिंग इन हिंदी।
ओके ओके जी। तो थोड़ी देर पहले मेरी यहाँ फिल्म दिखाई गई थी। फिल्म का नाम है द साइलेंट हीरोज। ये फिल्म जो है वो 13 रियल डेफ बच्चों को लेकर बनाई गई है और फिल्म का मकसद ये था कि ज़माना जिनको डिसेबल कहता है, अपंग कहता है, बेचारा की दृष्टि से देखता है, उनको वो एक सम्मान की दृष्टि से देखे। फिल्म की टैगलाइन थी, ज़माना देखे तो नज़र उठा के देखे। 13 सचमुच के बच्चे थे जिन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों में शूट किया। हमारी पूरी फिल्म उत्तराखंड में बनाई, हमने शूट करी है। 40 दिन का शेड्यूल था, बर्फीले इलाके थे, गंगा की बड़ी लहरें थी, उनके बीच में बच्चों से मैंने काम किया। और नवंबर में मैं पीवीआर के साथ इस फिल्म को थिएटिकल रिलीज करने जा रहा हूँ। जो मुझे यहाँ पे आप सबसे प्रोत्साहन, हौसला, बढ़ावा, प्यार और तालियां मिली, मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी मिले। और जो आप सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप लोगों का मुझे शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिले कि मैं भी क्षेत्र में आऊँ और अपनी बातें कह सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे। मुझे आपके दिल से आप सबके सिखाना चाहिए, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी आप ये आपकी जैसी भी जर्नी रही है इसकी शूटिंग की, आप प्लीज सबसे थोड़ा सा सबसे रूबरू कराएं अपनी जर्नी को थोड़ा सा। मैं बात आ गया जी। मेरी यात्रा कैसी रही उससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं आपके सामने बार बार आ सकता हूँ पर ये बच्चे शायद बार बार ना आ पाए। मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल इन बच्चों से हो कि इनका क्या रिएक्शन था, इनको फिल्म बनाने के बाद आज देखने के बाद इनको कैसा लगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है इन बच्चों से, वो इनसे पूछे। ये मेरा सपना था, यात्रा कैसे शुरू उसके बाद में आता है। ये मेरा सपना था कि मैं इन बच्चों को रियल हीरोज के रूप में सामने लेकर आऊँ, इन बच्चों को सिल्वर स्क्रीन का हीरो बनाऊँ। और मैं अपने साथियों से परिचय कराना चाहता हूँ जो हमारी फिल्म में थे। सबसे पहले दिनेश बोलाई जी जो हैं, जो बच्चों ट्रेनर के रूप में थे, और राज गैरोला जी हैं जिनका सपना था क्षितिज के रूप में भी बच्चे आ गए हैं, और एक बच्चे के पिता के रूप में यादव जी थे जी, और कनौजिया जी थे जो रेस्क्यू टीम में थे। बीस जी को तो आपने पहले से पहचान ही लिया, वो बच्चों के ट्रेनर थे, बीस जी है ना। बाकी उजैफ है, तरुण है, जयदीप है, आशीष, निखिल, राधिका, और फिल्म द साइलेंट हीरोज फिल्म्स के मेन हीरो कमल बिरानी जी, जिनके माध्यम से ये फिल्म आज यहाँ तक पहुंची। श्वेता, शालिनी, ख्वाहिश, गुरप्रीत, समरीन, बच्चों को ट्रेन जिन्होंने किया, दीपक भाई, इस सपने को टेक्निकली जिन्होंने साकार किया, अभिषेक चौहान भाई, रिपोर्टर के रूप में कनिष्का भारद्वाज, और बॉडी डबल के रूप में आयुष्मान भट्ट जी। फिल्म की कहानी की शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक बार बहुत पहले मैं बच्चों के स्कूल में गया, मुझे वहां जाकर ये महसूस हुआ कि ये बच्चे हमसे ज्यादा काबिल हैं, हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, हमसे ज्यादा सक्षम हैं, पर न जाने क्यों जमाना और इनके माँ बाप भी इनको एक डिसेबल या अपंग या बेचारे के रूप में देखते हैं। जबकि मुझे लगा कि ये, मैं चाहूंगा पीछे फ्यूली भट्ट जी भी आगे आए, है ना। और तब मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो लोगों का नजरिया बदले, लोग इनको इस रूप में देखें, इस जमाना देखे तो नजर उठा के देखें। शायद फिल्म देखने वाला को महसूस हुआ कि इन बच्चों ने रियलिस्टिक सिनेमा बनाया है, जिसको नियो रियलिस्टिक कहते हैं। एक हकीकत वाला सिनेमा उन्होंने बनाया है बिना किसी एक्स्ट्रा के। ओरिजिनल लोकेशन थी, सचमुच में गंगा का पानी था, सचमुच बर्फीले रास्ते थे, सचमुच इन बच्चों को उस लेडी को उठाते हुए वहां से आगे लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग सोशल मीडिया में द साइलेंट हीरोज films.com उसको सर्च करें, द साइलेंट हीरोज फेसबुक को देखें, द साइलेंट हीरोज ट्विटर को देखें, उसको देखें, उसको लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। कहते हैं कि हर फिल्म जो है अपनी किस्मत दिखाकर आती है। फिल्म की किस्मत यहाँ फिल्म थिएटर में लगने के बाद से अब आप लोगों के हाथों में होती है। जितना फिल्म के बारे में कहेंगे, आपको अच्छी लगी तो अच्छा कहिएगा, मैं नहीं कहता कि जबरदस्ती अच्छा कहें, खराब बात करें तो प्लीज आइए। सभी का नमस्कार। आप सभी के सहयोग के लिए, यहाँ आने के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग थे जो बहुत लंबे समय से इससे जुड़े रहे, हम पे विश्वास करने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। और एक और अलग पक्ष है हमारे बीच में, ये जयदीप है। जयदीप एक ऐसा दर्शक हमारे बीच में है, जयदीप के पिताजी, जो
अपने बच्चे का हौसला बढ़ाने आए हैं, पर वो देख नहीं सकते हैं। वो केवल पूरी फिल्म उन्होंने आवाजों से अपने बच्चे की फिल्म देखी होगी। मैं चाहता हूँ जैसी की पिताजी का जैसी की पिताजी के आगे आ सकते हैं। तो हमारी कैमरा टीम है, जब यहाँ से बाहर निकली तो कैमरा टीम जो है उन लोगों के बाइट जरूर ले, तो तैयार है प्लीज। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमेश नोडियाल। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस फिल्म का साथ नहीं हो पाया इनके। एक कैरेक्टर मैं भी इसमें कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाया। लेकिन आज महेश जी ने जो कुछ करके दिखाया है, देहरादून का नाम रोशन किया है उन्होंने, और उसके लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। अजीत भाई धन्यवाद। बहुत धक्के खा के यहाँ तक आए। मैं बहुत सारे लोग हर एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, बस जो याद आ जा रहा है मैं बोलते जा रहा हूँ। तो चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे माधव जी? और यहाँ पे हर बच्चे के माता पिता आ रहे थे, सबको प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों ने अपना समय दिया, खड़े होकर फिल्म देखी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस फिल्म को आगे बढ़ाएंगे, आगे ले जाएंगे। हम सबका सपना आप साकार करेंगे। पुनः धन्यवाद, प्रणाम। और जाते टाइम बाहर, और ये हमारी फिल्म की टैगलाइन है कि जमाना देखे तो सर उठा के देखे। इन सारे बच्चों को, इस कम्युनिटी को जमाना देखे तो सर उठा के देखे। और जो हमारी कैमरा टीम है वो बाहर चले जाए, और कुछ लोग अपना अगर दो शब्द बोलना चाहते हैं फिल्म के बारे में, जरूर कैमरे में बोले, जिसको हरजीत जी के माध्यम से सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे। इस फिल्म के माध्यम से एक बात जरूर पता चली है कि खामोशी बोलती है, इस फिल्म ने बताया है। तो सर जहाँ नीचे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे हम सब लोग चलते हैं और अपने अपने दो बाइट लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ 3 कैमरा है। एक कैमरा सीमा के साथ में, विजय सर आप भी जा रहे हैं नीचे, अपना गिरीश जी कहाँ है? गिरीश जी भी नीचे कैमरा लेकर है। जी संजय मैठाणी जी भी नीचे है। ठीक है, हम सब लोग नीचे, विजय भाई नीचे आप लोग शॉट ले रहे हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद।